Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, encompassers. Let me share an incident with you. We walked into the woods. It started raining. We found a cave. We stayed dry. We went home. How does it feel listening to all this? How does it sound? Well, doesn't it sound robotic? We walked into the woods. It started raining. We found a cave. We stayed dry. There's no natural flow in the conversation. Well, today we're going to find out what's missing. What are these transitional devices that bridge the gap and make the conversation sound natural? So when you bring all those sentences together, adding the transitionals, what do you get? First, we walked into the woods. Suddenly, it started raining. Fortunately, we found a cave where we stayed dry. Eventually, the storm passed and we went home. You see how these words connect and give a natural flow, and everything suddenly brings colors and makes sense. Let's analyze. Now, the robotic version was we walked. First, we walked signals the start of the sequence. So, we are giving the sequence, the transitional device of sequence. First, we walked, it started raining. Suddenly, it adds a bit of drama, a change in the tone. We found a cave. Fortunately, we found a cave. That's an emotional reaction. I don't think that they would give these emotional reactions. But still, in your essay writing or paragraph writing, you can use these natural connectors. Then a cave dash V that connects the location to the action where the action took place. And then we went home, eventually giving you the passage of time and a conclusion as well. Or finally, or eventually, we went home. So these are some transitional devices, and I've just concealed them so you will help me find out their function and their categories. First of all, furthermore, moreover, additionally, also to all these, the function here is to add information, reinforce an idea, right? So the category here would be addition. These are transitional devices of addition. I studied maths in the morning. Furthermore, I revised my Park study or physics paper. So this way it would be addition. Okay, next is, however, on the other hand, conversely, yet, nevertheless, but, although, all these are, the function here is to show a change in direction or a difference, contrast. Yes, you guessed it right, the transitional device of contrast. Next, first, next, then, finally, meanwhile, eventually. What do these words do? ये अल्फाज क्या करते हैं? Sorry, I forgot आपको जरा easy words में बता दूं. To show the order of events or steps. कैसे कोई चीज सीक्वेंस के साथ ऑर्डर के साथ स्टेप बाय स्टेप होती है, वहां पे हम ये यूज करते हैं. फर्स्ट ये हुआ, देन ये हुआ, फाइनली, इवेंचुअली, नेक्स्ट, देन. ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं सीक्वेंस शो कर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, थस, हेंस. ये क्या शो कर रहे हैं? व्हाट्स अ फंक्शन हियर? टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ, उसके रिजल्ट में ये हुआ, देयरफॉर हमें ये चीज मिली, थस, हेंस. तो ये सब रिलेट कर रही होती है पीछे से. ये कौन सी कैटेगरी होती है? व्हाट डू यू थिंक? कॉज एंड इफेक्ट.
जब एक काम किसी और काम के नतीजे में निकलता हो तो ये कॉज एंड अफेक्ट को शो कर। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिकली, टू इलस्ट्रेट। आई थिंक ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। ये शो करता है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ अ जनरल आइडिया। कोई जनरल आइडिया जैसे आपको समझा रही हूँ, मैं उसको अब कहूंगी फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, तो टू प्रोवाइड इंस्टेंस या एग्जाम्पल फॉर अ जनरल आइडिया, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? ये एग्जाम्पल। अच्छा, नेक्स्ट इज इन अदर वर्ड्स, टू पुट इट सिंपली, दैट इज टू से आई डोंट थिंक कि ये आपके लेवल पे ये देंगे, मगर ये क्या करता है? ये रीस्टेट एक आइडिया को करता है, एक ही बात को दूसरे अल्फाज में बताने के लिए, टू मेक इट मोर सिंपली, ये क्लैरिफिकेशन की कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट इज वेयर, अच्छा, वेयर एडजेसेंट टू, बियॉन्ड, नियर बाय, ऑपोजिट, ये क्या चीजें शो कर रही हैं कि ये चीज बराबर में है, ये आगे है, ये करीब है, ये ऑपोजिट है, वेयर है, ये कौन से वर्ड्स में? लेट्स सी, दे शो समथिंग इज इन अ स्पेस, तो ये कैटेगरी होगी लोकेशन की, प्लेस की, ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ प्लेस। अच्छा, इनफैक्ट, इंडीड, सिग्निफिकेंटली, नोटेबली, सर्टेनली, ये क्या चीजें हैं? लेट्स सी, ये हाईलाइट करती है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? सिग्निफिकेंटली, नोटेबली, सर्टेनली, जैसे कि let's see, ये एम्फेसाइज कर रही है, देखिए किसी बात को स्ट्रेस कर रही है, जैसे कोई टीचर आपको एश्योरिटी दिलाए कि यू विल सर्टेनली पास, ठीक है? यू हैव सिग्निफिकेंटली स्कोर्ड वेल, indeed you have done well, in fact you have done well in the exams and you will pass, you will pass, in fact your paper was very good. Okay, next is in conclusion, overall, ultimately, to summarize, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि ये एंड में भी है, तो ये बिल्कुल कंक्लूजन, अल्टीमेटली जब कोई चीज होती है, इवन इवेंचुअली, तो ये है दैट सिग्नल्स एन एंड ऑफ अ थॉट और पैसेज, कि ये बिल्कुल आखिर में कोई काम हो रहा है, जैसे कंक्लूजन है, दिस इज द कैटेगरी ऑफ कंक्लूजन, ठीक है? आई होप अब आपको इसकी कुछ ना कुछ समझ आ गई है, इसका फंक्शन क्या है और ये कैटेगरी है। तो हमने जब भी ये एग्जाम क्वेश्चन 4A क्लास 9 में जब आएगा, तो हमने इसको लॉजिकली कैसे देखना है, उसके फंक्शन के लिहाज से, कैटेगरी के लिहाज से, ठीक है? अब ये आपका मॉडल पेपर में है, तो इसको देख लेते हैं, देखते हैं कि इफ यू कैन, यू एबल टू डू इट। इस तरह आपको देखें, ये 1 2 3 4 5 6 आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके ब्लैंक, एनी 4 करने हैं, ये शोर शॉर्ट होना चाहिए, इसमें एक लफ्ज लिख के आपको 1.4 कर लेते हैं, और इसी तरह आप ये बस जाहिर बहुत आपको छोटी सी चीजें लग रही हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो बिल्कुल शोर शॉर्ट होता है ना, जो ये एक आपको लाजमी इसमें मिलेगा, एग्जामिनर की कोई मर्जी नहीं होगी कि इसमें आपके नंबर डिडक्ट करे, तो ये बहुत आपको अच्छी प्रैक्टिस करके इनमें से जरूर जरूर पूरे लेने चाहिए। सो लेट्स सी, डैश we embarked on our journey through the dense forest, dash sunlight। पहला हम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी कि हम इसको फुल रीड करें, ठीक है? वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम हियर बट वी रीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे अभी जो हमने कैटेगरीज पढ़ी, इसमें कौन सी कैटेगरी पे ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल, डैश we embarked on a journey through the dense forest, dash sunlight filtered through the canopy। अच्छा,
तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कोई सीक्वेंस की चीज आ जाएगी। देखिए आप इसमें से सीक्वेंस की कौन सी चीज है। और फिर embarked on a journey through the dense forest dash sunlight filtered। यहाँ पे लग रहा है जैसे कुछ स्पेस की बात है, कोई चीज कनेक्टेड है डेंस फॉरेस्ट फॉरेस्ट में सनलाइट के साथ। तो ये कोई प्लेस की कैटेगरी होगी। लेट्स सी, आप इसमें चेक करें कोई प्लेस की कैटेगरी है। नेक्स्ट इज डैश द पाथ अहेड सीम बोथ मिस्टीरियस एंड थ्रिल। अच्छा, अब वो डेंस फॉरेस्ट से अब आ गए हैं एक पाथ पे जो कि मिस्टीरियस है, थ्रिलिंग है। मे बी दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है, सनलाइट थोड़ी सी निकल रही है, तो उसकी वजह से ये बात आई थिंक mysterious or thrilling, making us eager to explore। तो यहाँ पे देखें कोई ऐसा ट्रांजिशनल डिवाइस जो कि इस पे डिपेंड कर रहा हो, किसी से कनेक्ट कर रहा हो, इफेक्ट शो कर रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट इज द एयर वाज थिक विद द earthy scent of damn moss dash added to the adventure। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो सारी पैथ तो कनेक्टेड थी, अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट की दी जा रही है। तो देखें कोई एडिशनल का है आपके पास ट्रांजिशनल। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने स्टॉप किया नहीं किसी जगह। अच्छा, डैम्प मॉस डैश एडेड टू द एडवेंचर। ये अब इस पे डिपेंडेंट लग रहा है ना कि ये जो डैम्प मॉस में एयर थी, सॉरी अर्थी सेंट ऑफ डैम मॉस जो हवा में महसूस हो रही थी, वो ऐड कर रही थी एडवेंचर। तो ये आप देखें कि व्हाट वुड बी द ट्रांजिशनल ओवर हियर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं डैश वी मेक अ क्लियरिंग where a gentle stream trickled over smooth stones, making a peaceful pause in our expedition। अब लास्ट में कौन सा आता है, आई आपको काफी हद तक इसका गेस मिल गया। अच्छा, ये हमने रीड फॉर मीनिंग कर ली पहली चीज। फिर हमने रिलेशनशिप भी देख लिया कि कौन सी चीज हमें लग रही है एज अ रिजल्ट लग रही है, कौन सी चीज हमें इन एडिशन लग रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन सी प्लेस को आइडेंटिफाई कर रही है, और कौन सी पीछे रिलेट कर रही है, कौन सी एंड हो रही है। उसके बाद हमें जो हमारा एक टेबल था उसकी जो इंफॉर्मेशन थी, वो जो आपको ये टेबल दिया था कैटेगरीज का, फंक्शंस का, वहां से हमने सोच के कि हमें पता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस फॉल होता है, तो हम उसको डालेंगे। सो दिस इज द फाइनल थिंग। फर्स्ट वी एम्बार्क्ड ऑन आवर जर्नी। ठीक है, फर्स्ट सिग्नल कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द जर्नी सीक्वेंस। वेयर सनलाइट फिल्टर, वेयर क्या कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जगह को, पोजीशन, लोकेशन को, जो कि फॉरेस्ट है। ठीक है, वेयर सनलाइट फिल्टर थ्रू द कैमरा। एज अ रिजल्ट क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस शो कर रहा है, द पाथ अहेड सीम बोथ मिस्टीरियस एंड इनवाइटिंग, मेकिंग अस ईगर टू एक्सप्लोर फर्दर। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस था कि वो फिल्टर होके लाइट आ रही थी, लाइट वाज फिल्टरिंग थ्रू, सो द पाथ वाज लुकिंग मोर इनवाइटिंग। अब नेक्स्ट क्या है, in addition the air was thick with the earthy scent। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कहा था ना, यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एयर के बारे में, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है मॉस की। अच्छा, उसके बाद है विच। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये विच वेयर वाज इन अ रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये जगह के बारे में बता रहे हैं, और विच रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट। आपको पता है ना, प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो पीछे किसी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन।
फिर इवेंचुअली हमने ये भी अभी पढ़ा है कि ये passage of time, arrival at a destination, ending of something, conclusion. So we reached a clearing where a gentle stream trickled over smooth stone, marking a peaceful pause. अच्छा, इसमें अब ये आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आप इसको सॉल्व करें जस्ट लुकिंग एट व्हाट शुड बी द कैटेगरी, कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। अच्छा, आपको एक और टिप भी देनी है मैंने, वो क्या है? वो टिप ये है कि द टिप इज कि तीन तरह की चीजें यूज होती हैं। एक तो इसमें इस पैसेज में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखें, ये है फर्स्ट कॉमा, एज अ रिजल्ट कॉमा, इवेंचुअली कॉमा, इन एडिशन कॉमा। ठीक है, स्टार्ट में जब भी आपके ये आते हैं ट्रांजिशनल्स तो वहां पे कॉमा लगता है। ठीक है, और जब सेंटर में आते हैं लाइक दिस, वहां पे कॉमा नहीं होता, ये होते हैं रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बताया रिलेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये बीच में किसी पीछे वाली चीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ उसको रिलेट कर रहे होते हैं। लाइक इन एडिशन द एयर वाज थिक विद द अर्ली सेंट डैम मॉस व्हिच एडेड टू द सीन। अच्छा, द जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट वेयर सनलाइट फिल्ड, वेयर जगह का बता रहे हैं, एडवर्ब आपको पता है, एडवर्ब टेल अस अबाउट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, राइट? सो वेयर व्हेन व्हाई हाउ जो होगा वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब होगा अगर वो सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन होगा अगर वो दो सेंटेंस के बीच में आके रिलेट करेगा किसी पीछे वाले नाउन से। तो ये आपको रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडजेक्टिव का उसका प्रोनाउन का भी पता चल गया, और इन कैटेगरीज का भी पता चल गया, राइट? So try to do this one and send me. So I'll send me your answers in the comment. Okay. So I hope that this would help, क्योंकि ये बहुत से बच्चों को परेशान कर रहा था ये वाला question. This is question number 4A. And if you are one of those encompassers who have subscribed and benefit from all the videos, be just make sure that you like it and do share it with someone who needs it. Allah Hafiz, and I just be coming up with the next video for your do as directed and dialogue writing. These are all the questions that the students have been asking. जो आपके questions है उसकी basis पे मैं video बना रही हूँ. Allah Hafiz. Assalamu.